ओके, सो वी हैव विद अस आकाश, जो कि हमारे एक स्टूडेंट रहे हैं पहले, और ही हैज रिसेंटली गॉट रिकमेंडेड 2 times बैक टू बैक, one in Army Technical Entry Scheme TS52 and one in NDA 153 for Air Force Flying Branch. So Akash, welcome to our this conversation again. And the purpose of this conversation, as we have discussed earlier, is to let other aspirants know कि आपने कैसे preparations किए एंड आपके क्या क्या setbacks रहे, क्या क्या failures रहे, कैसे आपने ओवरकम किया उनको, आपकी लर्निंग स्ट्रैटेजीज क्या रही, इंक्लूडिंग द रिटन पार्ट एंड ऑल्सो द एसएसबी इंटरव्यूज, है ना. सो अभी हमने स्टार्टिंग नोट जो किया आपके सक्सेस से किया, बट वेरी इंटरेस्टिंग पार्ट वुड बी फॉर द व्यूअर्स दैट कैसे आपने अपने फेलियर्स को ओवरकम किया. सो आप ये बताइए कि ऑलवेज यू गॉट कॉन्फिडेंस आउट, और कभी आप स्क्रीन आउट भी हुए हैं? So firstly, thank you so much for inviting me here. And जहाँ तक failures की बात है सर, I've been conference out 4 times before I got recommended. So I've never been screened out in the SSB, but I've been conference out 4 times. 2 times I got conference out for NDA and 2 times I got conference out for the TES. So the very first SSB that I went was AFSB Dehradun. That was for the NDA 151 course. Then I got for TS, I went to Prayagraj. From 11 SSB I got conference out. Then I went to Mysore, to AFSB Mysore, I got conference out for NDA 152nd course. After that I went to 32 SSB Jalandhar. From there also I got conference out. Okay. Post that, my last attempt was there for NDA and for TS. So then I got recommended from 3 FSB Gandhinagar for the 153rd course of NDA. And I got recommended for the TS52 also from 34 SSB Prayagraj. That means you got recommended in your 5th and 6th attempts. Yes sir, I got recommended in my 5th and 6th attempts. Okay, so since starting, what was your preference? क्या किस में जाना चाहते थे आप? Sir, obviously I wanted to get into the armed forces. However, my preference was that I joined the Indian Air Force as a fighter pilot. I wanted to become a fighter pilot. My father has previously served in the Indian Air Force for 20 years. So I just wanted to continue his legacy. So, and that my born and brought up has been done in Air Force environment only. So I wanted to join the Indian Air Force. And okay, so was it difficult for you to clear the NDA written part? So since I was preparing for the JEE also, so I did not find it very difficult to crack the NDA examination, written examination. So your maths and science portions were always strong? Yes sir. As well as English? Yes sir, my maths and mostly my written was cleared on the basis of maths, physics, chemistry and English. So I never focused too much on history, geography, because those were not my subjects. So you cleared NDA 3 times? Yes sir, I cleared NDA 3 times. And what is the general score, अगर हम अपने viewers को एक idea देना चाहें कि कितने स्कोर पे कॉल आ जाती है? So what have been your scores? Sir, my scores have been somewhere close to 350 to 360. My score varied from this time I got 346, but in my earlier attempts I scored somewhere around 355, 360 was my average score in the written part. Okay. So if I talk about the cutoff scores, this time the cutoff was 291 approximately. The cutoffs have been quite lower for the past few courses. So for an aspirant, the safe score I would suggest would be 360, and if they are aspiring for army, I would say 400 is the safest score to get into merit also, because in NDA many candidates get merit out also. Yes sir. But in flying branch medicals काफी importance रखते हैं, काफी candidates जो हैं medical out हो जाते हैं. Yes sir, in fact for the previous courses I would say कि जो सीट्स हैं वो फिल ही नहीं हो पाती है कम्प्लीटली, बिकॉज देयर आर 90 सीट्स फॉर बॉयज इन फ्लाइंग ब्रांच, एंड जो रिकमेंडेड कैंडिडेट्स में होते हैं मोस्टली 82 ओनली दे गेट फ्लाइंग फिट. सो मेडिकल ऑल्सो प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन फ्लाइंग ब्रांच. ओके, सो व्हेन यू केम टू अस लास्ट ईयर, Yes, जब आपने हमारे यहाँ मेरे अंडर में कोर्स ज्वाइन किया, यस सर, एंड यू गॉट कॉन्फ्रेंस आउट. Yes, sir. So what were the reasons कि पहले जब आप आए थे
उस समय आपने क्या क्या एनालाइज किया कि कहाँ क्या क्या लैकिंग्स है आपके अंदर एज पर आवर फीडबैक एंड हाउ यू took it Yes, as a chance to success and to improve? Sir, honestly, so when I joined Breakthrough Point, sir, I went to two SSBs back to back. My ND 151 and my TS was also lined up. So that happened in a span of 10 to 12 days only. I gave two SSBs. And when I got convinced out, so I met you also. You gave me this feedback about when I told you about my drop year. So you said to me that you were also not aware that I'm planning to take a drop year. So when I analyzed my performance, I somewhere felt that I went too conservative with this approach, that I do not have a backup plan with me ready. So if not this, then I don't have a proper backup plan. My approach to any test would be very conservative, that I have to get recommended, otherwise my whole year would be wasted. But my last two attempts, I had already secured admission in NSUT Delhi, so I had a very solid backup option ready with me. And you also told me for my last two attempts that I am very confident this time. You were able to see that the confidence also increased from the first four attempts and the last two attempts. So I feel I went too much conservative with my approach because I did not have any backup plan ready with me. Okay, so according to you, is there any short strategy, or it would differ for every aspirant according to his or her academic credentials and his performance, his or her performance? Sir, like for the SSB? For the SSB, yes. Yes, sir. Yeah. Sir, honestly, I felt that there are candidates, I would say, some people don't have good communication skills. Some of them are there who don't have good English or spoken English because they come from rural background or something. So I feel every candidates have different weaknesses and different strong points. So English was never an issue for me. However, I had a weakness that I was very introverted in a group. So that weakness I overcame. Even the GDs that happened in the classes, that gave an atmosphere to me that I could express myself more freely. So it took time for me, but eventually I got that weakness cleared. So generally candidates के मन में ये रहता है कि 10 days, 15 days, 20 days का वो कोई कोर्स करेंगे और उसमें उनको सक्सेस मिल जाएगी. Yes, sir. तो बट आपको तो एक साल लग गया अप्रोक्सीमेट. Yes, sir. है ना. सो ये इसमें आप क्या बताना चाहेंगे कि सबको अपनी वीकनेसेस को एनालाइज करके और उन पे काम करना चाहिए. Yes, है ना. और आपके जो वीकनेसेस थे वो आपने शेयर किया. Yes, है ना, कि ग्रुप डिस्कशंस ने और इस तरह की प्रैक्टिस ने कैसे आपको खोला. Yes, sir. एंड ऑल्सो आपने एक बैकअप प्लान बनाया अपने Yes, लिए ताकि आप बेटर इंटरव्यू को फेस कर पाएं. Yes, sir. किस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए प्रीवियस इंटरव्यूज में जिनमें आप कंफर्टेबल नहीं थे? Yes, sir. So there were a lot many questions which I felt कि मैं थोड़ा अच्छे से उन्हें आंसर कर सकता था. A very popular question जो मैं हर किसी से डिस्कस करता हूँ was about that my father did not continue his service after 20 years. So this question was put up in front of me many a times. In fact, when I got convinced out, even in the mock interview that you took, you also asked this question, that if your father just served in the Indian Air Force for only 20 years, something similar is expected from you as well. So I felt that I got puzzled up many a times in this question, but eventually I made a good answer for this also. And what I say, that one-to-one interaction and the personal feedback that I got for every doubt, I felt that was the most helpful thing in the academy, in the coaching, that I would say helped me, got recommended twice. Okay. एंड अपार्ट फ्रॉम दिस और कोई चीज साइकोलॉजी में आपने क्या क्या चैलेंजेस फेस किए और कैसे उनको ओवरकम किया? सर साइकोलॉजी इनिशियली मेरा साइकोलॉजी मैंने कभी पढ़ी नहीं थी एज सच. एंड जो भी TAT WAT, आई वाज
नॉट वेरी मच अवेयर ऑफ इट। ये सब इनफैक्ट जब मैं फर्स्ट क्लास मेरी जो आपके साथ हुई थी, इनफैक्ट उन्होंने आपने एक स्टोरी दिखाई थी, आई वॉज नॉट इवन अवेयर ऑफ द फॉर्मेट की किस तरह से स्टोरी लिखी जाती है, एंड यू टॉट मी दैट फॉर्मेट ऑल्सो। सो साइकोलॉजी आई वुड से मेरा हमेशा से राइटिंग पोर्शन में थोड़ा वीकनेस रहा है कि स्पीड अप नहीं कर पाता था। कभी WAT छूट जाएगा मेरा, कभी SRT छूट जाएगा, कभी TAT में कोई एक दो लाइन छूट जाएंगी। सो प्रैक्टिस के साथ इनफैक्ट मैंने ओवर अ पीरियड सिर्फ क्लासेस में ही मैंने 110 120 TAT स्टोरीज प्रैक्टिस कर ली थी। SRTs कम से कम 300 to 400 SRTs मैंने लिख लिए थे। सो दैट प्रैक्टिस हेल्प मी दैट in my last attempt I nearly did 55 SRTs, और जो मैं फर्स्ट अटेम्प्ट में गया था तब only 35 SRTs was I was able to complete. This was your individual improvement. Yes sir. हालांकि SSB में ऐसा कुछ नहीं है कि एक एग्जैक्ट नंबर ऑफ SRTs ही सबको करना है। Definitely sir, वो तो the quality of SRTs, quality of your responses and the congruence of all the three techniques, है ना, तो उसमें मैटर करता है कि आपका फाइनल सिलेक्शन कैसे होता है। यस सर। तो साइकोलॉजी आपने इस तरीके से विद प्रैक्टिस एंड विद कंटिन्यूड फीडबैक मैकेनिज्म यू इंप्रूव्ड। Feedback answer, I would say that I never learned psychology. It was always, in fact, आपने भी what you told that to focus on the natural psychology is what I could make out from the classes. However, feedback is very much important. आप ऐसे नहीं कर सकते आपने एक स्टोरी लिखी, आपने 10 से 12 स्टोरीज लिख ली, आपने एक TAT प्रैक्टिस कर लिया पूरा एंड देन यू आर डन। आई फील एक प्रॉपर फीडबैक मैकेनिज्म बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड इंडिविजुअल फीडबैक इज, आई ऑलवेज से कि ज्वाइन वहीं करो, वहीं से मेंटरशिप लो जहाँ पे यू कैन गेट पर्सनल फीडबैक, यू कैन कनेक्ट टू द मेंटर। सो because something similar happened in my JEE preparation also, so I joined a very premium coaching academy, but वहाँ पे वही था कि the batch size was nearly about 60-70 students in a class, so no one was able to ask proper doubts to the faculty, but यहाँ पे there was a proper one-to-one interaction with you, so that feedback helped me a lot improve my psychology. And what about GTO में मुझे याद है कि initially रोप एक्टिविटीज में आप इतना कंफर्टेबल नहीं होते थे, है ना, PGTs वगैरह में भी नहीं होते थे, बट आपने पिकअप किया एंड आते आते लास्ट तक आते आते आप बहुत अच्छे से सारे ऑब्स्टिकल्स करना सीख गए और कॉन्फिडेंस बूस्ट अप हो गया। मेन थिंग इज दैट। सो इन द G2 क्वेश्चन सर आई वुड से कि बिकॉज I focus a lot on my JEE preparation, so outdoor activities इतना नहीं था, the lockdown happened and उसके बाद directly JEE preparation, so इतना ज्यादा आउटडोर एक्टिविटी नहीं था। हाउएवर GTO इम्प्रूव करने का एक कंसिस्टेंट अप्रोच था मेरा। द डे 2 और डे 3 मेरे को याद है, वी वेंट आउट, GTO हुआ था हमारा, एंड रोप वाज समथिंग जो एक स्टेप भी मुझसे नहीं चढ़ा गया था, बट इवेंचुअली व्हेन 10 to 15 days हैपेंड, थोड़ा थोड़ा स्टार्ट हुआ, एंड 1 से 1.5 महीने के अंदर तो आई वॉज वेरी मच कॉन्फिडेंट इन रोप क्लाइंबिंग ऑल्सो। रोप स्विंग वॉज समथिंग विच आई वॉज नॉट एबल टू डू इनिशियली, सो कंसिस्टेंट अप्रोच वहां पे लगा मेरा। हाउएवर आई डिड नॉट फाइंड इट वेरी डिफिकल्ट। मैं रेगुलर आउटसाइड एक्टिविटीज मैंने स्टार्ट कर दिया व्हेन आई गॉट इनटू फुल फ्लेजेड SSB प्रिपरेशन। सो आफ्टरनून तक हमारी क्लासेस होती थी, इवनिंग में आके मैं आउटडोर एक्टिविटीज जरूर करता था। कोई भी स्पोर्ट, आपने फीडबैक दिया था कि यू हैव टू प्ले एनी स्पोर्ट जो आपको मिले, सो स्पोर्ट्स में काफ़ी एक्टिव हो गया था उसके बाद से। कोई ऐसे पर्टिकुलर, आई वुड नॉट से कि मैं एक पर्टिकुलर स्पोर्ट्स पे फिक्स था, जो स्पोर्ट्स मिले, फुटबॉल, बास्केटबॉल, क्रिकेट, बैडमिंटन, जो मिलता था खेल लेता, कोई नहीं होता था साइकिलिंग करने चला जाता था। तो PIQ में क्या लिखा आपने? सर PIQ में हॉबीज एंड इंटरेस्ट में, हॉबीज एंड इंटरेस्ट में बास्केटबॉल एंड बैडमिंटन माय 2 प्राइमरी स्पोर्ट्स। सो एज यू मेंशन दैट आप बहुत सारे स्पोर्ट्स, यस सर, तो जो भी मौका मिलता था खेलते थे। यस सर। तो व्हाट एग्जैक्टली आपने हॉबीज में और स्पोर्ट्स में क्या लिखा? बैडमिंटन एंड बास्केटबॉल मेरे प्राइमरी सब्जेक्ट्स थे, प्राइमरी स्पोर्ट्स थे, तो मैंने वो लिखा था। एंड उसके अलावा बाकी तो आउटडोर एक्टिविटीज में मैं काफी इन्वॉल्व था ही, तो वो मैंने इंटरव्यू के टाइम पे कॉन्वर्सेशन में ही बात बता दी। अच्छा, इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे गए थे? यस सर, इनसे रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चंस आए भी थे मेरे से, जब उन्होंने पूछा कि आप रनिंग करने जाते हो तो क्या टाइम आपको लगता है इतना। सो दे वर, आई मीन, यू कैन नॉट जस्ट फेक योर पर्सनालिटी ओवर देयर। कोई भी चीज़ अगर आप
बता रहे हो उन्हें, तो आप अगर झूठ बोल रहे हो वहाँ पे तो वो पकड़ में आ ही जाएगा, तो सो बेटर कि आप सच ही बोलो वहाँ पे। And what other types of questions were asked during your interview? सो सर आई फेल्ट कि जो एनडी एंड टीएस बोथ इंटरव्यूज जो मेरे हुए हैं अभी तक, दे वर completely different interviews. So TS में when I went there for my first TS, I remember it was a very technical interview. I mean, the interviewing officer, I feel he was not interested in my personal life. So he complete interview went on my technical knowledge. How does an inverter works? अच्छा आप athletics में involved हो तो athletics ground circular क्यों नहीं होता, elliptically क्यों होता है? इनफैक्ट अगर मैंने इन्वर्टर का उन्हें बेसिक मैकेनिज्म बताया भी, सो ही सेड कि इतना ऊपर से बताने में कोई फायदा नहीं है, गेट इनटू मोर डीप नॉलेज। तो काफ़ी डीप में गए टेक्निकल्स में, एयरक्राफ्ट कैसे फ्लाई होता है, बॉयंसी से बर्नौलीज थ्योरम, सो सब चीज़ें वहाँ पे आई। वहाँ पे मैग्नस इफेक्ट क्या होता है, थ्रस्ट, अप थ्रस्ट, ग्रेविटेशन फोर्सेस, काफ़ी टेक्निकल इंटरव्यू था। So were you able to answer these? सर जितना आई हैव रेड एंड लर्न, एयरक्राफ्ट से रिलेटेड जितने टेक्निकल्स में उन्होंने पूछा, आई वॉज एबल टू आंसर मोस्ट ऑफ देम, बट एज ऑलवेज नो वन इज परफेक्ट, सो जितना मेरे को आता था मैंने उन्हें बता दिया था। हाउएवर मैंने उन्हें बोल दिया था सर आई विल मेक श्योर कि नेक्स्ट टाइम आई विल जस्ट रिवाइज इट एंड कम प्रिपेयर्ड। सो बट लास्ट जो मेरे इंटरव्यूज हुए थे दे वर quite personal, so my personal life was discussed much more than the technical. So eventually geopolitics also took also played a major role in this. काफ़ी geopolitics से related questions भी आए थे last. Yes sir. So जैसे INSTC, I remember it was a very, I mean last के दोनों ही SSB जब मैं recommend हुआ, दोनों में ही INSTC के बारे में काफ़ी डिस्कस हुआ था। एंड उस टाइम पे आई रिमेंबर that Boeing issue happened. सुनीता विलियम्स जो स्पेस में स्टक हुई थी, सो Boeing का malfunctioning हुआ था, तो he discussed the interviewing officer, in fact not in the interview only, in my conference also this was asked ki, so he asked me that who are the aircraft manufacturers in the world, so I told them about the defense aircraft, so उन्होंने बोला not defense aircrafts, आप प्राइवेट में बताओ, प्राइवेट में हु मैन्युफैक्चर्स एयरक्राफ्ट, सो आई टोल्ड देम अबाउट बोइंग। सो बोइंग से ही वेंट ऑन टू सुनीता विलियम्स इशू, एंड देन मैलफंक्शनिंग क्या हुआ, क्यों होता है ये मैलफंक्शनिंग, सो दैट आल्सो इट वेंट इनटू क्वाइट डीप। पर्सनल क्वेश्चंस में क्या क्या पूछा गया? पर्सनल, यस सर, जनरल अवेयरनेस, नॉलेज ऑफ सराउंडिंग्स हो गया। यस सर। पर्सनल में मोस्टली कि व्हाई इट टुक 4 अटेम्प्ट्स, लाइक मैं जब लास्ट एसएसबी देने गया था अपना 6th अटेम्प्ट जो था, उससे पहले मैं एएफएसबी गांधीनगर से रेकमेंड होके आ चुका था। सो द इंटरव्यूइंग ऑफिसर वाज मोर इनटू कि यार आपको 4 अटेम्प्ट, व्हाई 4 अटेम्प्ट्स, आप कॉन्फ्रेंस आउट हुए एंड क्यों, हाउ आर यू एबल टू ओवरकम कि यार 4 बार मैं हो चुका हूँ, फिर आप 5th अटेम्प्ट में आने का, दैट टेक्स अ लॉट ऑफ hard work also. So I told them ki sir, the fact that I did not get screened out in any of my attempt, it also played a very pivotal role कि मैं फिर से appear हुआ, because if the board, I mean if you are getting screened in regularly, so somewhere or the other the board members are convinced that you have the ability कि आप recommend तो हो जाओगे, you have the ability कि हम आपको test करें, तो so why not to put in your efforts. सो एंड समवेयर कि अपना डेडिकेशन होता है, द पैशन, अगर इफ यू आर नॉट पैशनेट इनफ इट वोंट, यू आर नॉट सूटेड फॉर द आर्म फोर्सेस, इज व्हाट आई बिलीव। एंड व्हाट वाज द रिएक्शन ऑफ योर पेरेंट्स, फैमिली मेंबर्स, जब आप बार बार कॉन्फ्रेंस आउट हो रहे थे, तो उन्होंने कैसे सपोर्ट किया या आपको बोला कि नहीं किसी और चीज़ पे फोकस करना चाहिए, डोंट वेस्ट योर टाइम हियर, डोंट परस्यू दिस काइंड ऑफ थिंग्स? सर एज सच आई डिड नॉट फेस बैकलैश फ्रॉम माई फैमिली। इनफैक्ट मेरे पेरेंट्स क्वाइट सपोर्टिव थे थ्रू आउट दिस होल जर्नी, आई वुड से, बिकॉज यस ऐसा हो गया था, बिकॉज आई हैड ऑलरेडी टेकन अ ड्रॉप ईयर, एंड उसके बाद भी मेरा जो जनवरी अटेम्प्ट हुआ था ड्रॉप ईयर के बाद, दैट ऑल्सो आई एक्सपेक्टेड, एज पर माई स्कोर आई एक्सपेक्टेड मोर परसेंटाइल, बट वो परसेंटाइल भी नहीं आई। देन आई गॉट कॉन्फ्रेंस आउट अगेन,
ड्रॉप ईयर में भी इनफैक्ट मैं 2 बार पहले तो हो चुका था, उसके बाद आई टुक अ ड्रॉप ईयर. जनवरी अटेम्प्ट मेरा वाज ऑलरेडी रेडी एंड जनवरी में ही मेरा एनडीए का अटेम्प्ट था फॉर द एसएसबी. सो आई वेंट टू मैसूर, गॉट कॉन्फ्रेंस्ड आउट, देन आई वेंट ऑन टू गिव माय जेई मेंस अटेम्प्ट. जेई मेंस देने के बाद तब तक रिजल्ट नहीं आया था एंड आई वेंट टू जालंधर फॉर द टीएस एंट्री. दिस ऑल्सो हैपेंड इन अ स्पैन ऑफ 1 month ओनली. एंड मैं जालंधर से कॉन्फ्रेंस आउट होके आया था. आई वॉज ऑलरेडी डिसहार्टेंड एट दैट टाइम एंड नेक्स्ट डे मॉर्निंग 4 AM आई रिमेंबर जेई मेंस का रिजल्ट आ गया था. सो एज पर माई स्कोर आई एक्सपेक्टेड समवेयर कि 97-98 परसेंटाइल तो आ ही जाएगी, बट हैपेंड उल्टा ही कि यार पता नहीं 92 परसेंटाइल व्हाट हैपेंड. लास्ट टाइम कितना आया था आपका 2023 में? लास्ट टाइम ऑल्सो सर ऑल्सो 89-90 के आसपास परसेंटाइल मेरा रहा था. सो बट आई एक्सपेक्टेड इम्प्रूवमेंट कि यार 1 साल ड्रॉप लिया है तो आई एक्सपेक्टेड मच इम्प्रूवमेंट. सो कॉन्फ्रेंस आउट हुआ एंड आई वॉज जस्ट रिटर्निंग कि सुबह 4 बजे पता चलते जेई मेंस का रिजल्ट आ गया एंड उसमें भी फिर आई वॉज नॉट एबल टू स्कोर वेरी वेल. सो बट पेरेंट्स ऑलवेज सेड कि ठीक है, अगर पैशन है डिफेंस फोर्सेस में करो उस चीज़ को, बट नाउ इज द चांस कि यार इसके बाद ड्रॉप ईयर तो नहीं ले सकते ना, 1 साल ऑलरेडी हो गया तो कहीं ना कहीं एडमिशन तो लेना पड़ेगा. सो फोकस ऑन योर जेई मेंस ऑल्सो. सो वो 2 months आई रिमेंबर I worked very hard for the JEE mains also. So eventually I scored good percentile, 97 above 97 percentile I scored, and NSUT में I got admission also. And यही था वो breaking point आ गया था when I got conference out from Jalandhar. That was the actual breaking point कि यार वो part अगर मैं नहीं overcome कर पाता तो simply मैं छोड़ देता डिफेंस. Was that your breaking point or was that your breakthrough point? Actually it was a target of breaking point, but it got converted into breakthrough point only because उसके बाद back to back NSUT में admission हो गया. I got good branch, I got good percentile, I got recommended from Gandhinagar, I got recommended from Prayagraj, then I got flying fit in my first attempt only, I got merit and also. So वो कहते हैं ना कि द कर्व पासेस, जब वो एक फ्लैट पॉइंट आता है, जिसने वो फ्लैट पॉइंट क्रॉस कर लिया he would eventually get successful. So now what is the reaction of your family members? I can say very satisfyingly that I have made my parents very proud this time. Because as such कोई chance मिला नहीं अभी तक to make them proud, but after this all these things happened, I felt कि यार somewhere or the other they are very much they can say openly in the society that something I have achieved. Honestly I would be going through a very tough training also for the next 4 years, so this is not the end. hard work तो अभी भी करना पड़ेगा. This is just starting. This is just the starting. So but they are very much satisfied and proud of me, I can say. So in general जो आप ही के जैसे कैंडिडेट्स हैं, एस्पिरेंट्स हैं और जिनको बैक टू बैक फेलियर्स का सामना करना पड़ रहा है या फर्स्ट टाइम भी जा रहे हैं, उनको इन जनरल आप अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस क्या बोलना चाहोगे? पर्सनल एक्सपीरियंसेस से सर आई वुड से कि कंसिस्टेंट अप्रोचेस, मतलब अगर आपने हार्डवर्क किया है ना, दैट वुड नेवर फेल, कि आप कहीं ना कहीं तो वो काम आएगा अगर आप एक बार हार्डवर्क करना सीख गए. एंड these days many of the youngsters I feel कि कंपटीशन इस लेवल का हो गया कि यार इतना हार्डवर्क करने के बाद भी कुछ अचीव नहीं कर पाए. बट अगर आपने वो एबिलिटी गेन कर ली है ना कि यार हार्डवर्क करना मैं सीख गया हूँ, तो you would do very great in life. And this is what I learned. I mean day 1 और day 2 पे I remember WET चल रहा था, तो उसमें WET में ये हार्डवर्क एक आया था एंड पता नहीं क्या हुआ था, वो जल्दीबाजी में या कुछ वो स्किप ही हो गया था वो वर्ड. तो जब आप डिस्कस कर रहे थे WET, तब आई गॉट इनटू दिस कि यार हार्डवर्क ऑलवेज पेज ऑफ. सो वो जो चीज़ है आई स्टिल बिलीव कि यार दिस इज समथिंग एक्चुअली दैट वुड हैपन. हार्डवर्क वुड नेवर फेल. अगर आपने हार्डवर्क किया दैट वुड ऑलवेज पे ऑफ इन योर लाइफ. अच्छा, कुछ ऐसे टेस्ट होते हैं SSB में जो कि काफ़ी सारे मिथ्स क्रिएट हो चुके हैं उनके लिए. यस सर. कि
कंप्लीट होगा तभी अच्छा होगा, पूरा होगा एसआरटी 60 के 60 तभी अच्छा होगा, कमांड टास्क में इजी टास्क आएगा तो लोग कॉन्फ्रेंस आउट हो जाएंगे और टफ टास्क आएगा तो रिकमेंड हो जाएंगे। इसमें आपके क्या एक्सपीरियंस, हाउ वाज योर कमांड टास्क? सर माय कमांड टास्क, आई रिमेंबर जब मैं फर्स्ट टाइम गया था देहरादून में, सो आई वाज कॉल्ड लास्ट फॉर द कमांड टास्क एंड अनऑफिशियली ये बातें हैं कि जो लास्ट में जाता है उसका कमांड टास्क इज वेरी टफ एंड वो एक पोटेंशियल रिकमेंडेड कैंडिडेट है। तो आई वाज वेरी कि यार मेरा जीडी वगैरह भी बहुत अच्छा गया तो मे बी कि यार मैं हो रहा हूँ रिकमेंडेड इस टाइम, कमांड टास्क में भी लास्ट बुलाया मेरे को, बट आई गॉट कॉन्फिडेंस आउट इन दैट अटेम्प्ट। गांधीनगर में आई वेंट इन, मेरा कमांड टास्क वाज वेरी सिंपल, वाज रिलेटिवली वेरी सिंपल जो बाकी कैंडिडेट्स के हिसाब से हुआ था। इट वाज जस्ट कि यार एक प्लैंक लगा, एक बल्ली लगाया एंड इट हैपेंड। सो आई फेल्ट कि यार दिस इज वेरी इजी, इस बार भी नहीं होऊंगा मैं तो अब, बट उसमें मैं रिकमेंड हो गया। सो ये सारे मिथ्स हैं कि यार एसआरटीज आपने कंप्लीट, आपको 45 एसआरटीज मिनिमम करनी पड़ेंगी देन ओनली यू कैन गेट रिकमेंडेड। ऐसा नहीं है। आई हैव सीन कैंडिडेट्स, मेरे साथ ही मेरे बैच में कैंडिडेट्स हैं जो 38 एसआरटी करके आया था एंड ही गॉट रिकमेंडेड। सो ऐसे ही हुआ था। अब कोई लोग बोलते हैं कि यार अगर आपका इंटरव्यू जल्दी खत्म हो गया दैट मीन्स द इंटरव्यूइंग ऑफिसर इज नॉट वेरी इंटरेस्टेड। मेरा 34 एसएसबी में इंटरव्यू, it lasted only for 15 minutes, exact 15 minutes. I even remember कि यार कहीं सही में तो ऐसा नहीं होता कि and हुआ वहाँ पे, I got recommended वहाँ पे भी, only 2 candidates got recommended. So अब तो मैंने सारी चीज़ें 6 SSBs लगभग 1 महीना में पूरा बोर्ड के अंदर रह चुका हूँ। So हर तरह की सिचुएशन मेरे सामने आ चुकी हैं। टफ कमांड टास्क, इजी कमांड टास्क, लंबा इंटरव्यू, छोटा इंटरव्यू। So all these I feel they are just myth, ऐसा कुछ नहीं है। Go there, वहाँ जाके the only thing is you just have to perform. And lecturates में आपकी performance कैसी रही? Yes sir. So lecturates sir, I feel कि lecturate was always my strong point. Lecturate, I remember many candidates in my batch when they used to see कि assistant is bringing a bell and a whistle. So that is the time for lecturate. So everyone कि यार हाथ काँप रहे हैं, पैर काँप रहे हैं, but I felt कि यार this is the best opportunity that I have in front of me. Lecturate was something which always gave confidence to me. कई बार ऐसा हुआ कि यार PGT में ideas नहीं आ रहे हैं, PGTs में I am not able to do anything. Interview में I got stuck into a technical question. Psychology में WET छूट गया, SRT छूट गए. बट लेक्चरेट वॉज समथिंग कि यार आई ऑलवेज फेल्ट वेरी कॉन्फिडेंट कि इवन अगर वो मेरे को प्रिपरेशन टाइम ना भी दें आई कैन स्पीक ऑन अ टॉपिक फॉर 3 minutes. एंड हाउ डिड यू प्रिपेयर? ऐसा कॉन्फिडेंस कैसे आया? सर अगेन दिस इज प्रैक्टिस एंड कोचिंग में एवरी डे दिस इज समथिंग वेरी रेगुलर कि क्लास में कुछ हो या ना हो, पीपीडीटी एंड लेक्चरेट वॉज मैंडेटरी हर दिन. सो लेक्चरेट की प्रैक्टिस वहाँ से हो गई थी. इवेंचुअली मैंने शायद मोर देन 150 लेक्चरेट्स दे दिए होंगे, टॉपिक्स प्रिपेयर्ड थे मेरे. सो ऐसा नहीं है, आई मीन पीपल फील कि यार अगर यूएनएससी के बारे में मैंने पढ़ा, यूएन के बारे में मैंने पढ़ा है तो बस मैं यूएन के बारे में लेक्चरेट दे सकता हूँ. ऐसा नहीं है. अगर आप यूएन के बारे में लेक्चरेट प्रिपेयर कर रहे हो तो यूएन की बॉडीज के बारे में भी तो आप सारे चीजें प्रिपरेशन में और भी थोड़ा बहुत इधर उधर की नॉलेज आपको मिलती है. yes, और उनको एक प्रॉपर सीक्वेंस में प्रिपेयर करके आप किसी भी एक स्पीच डिलीवर कर सकते हैं. एग्जैक्टली. वो ग्रुप डिस्कशंस में भी ग्रुप डिस्कशन पॉइंट्स मिलते हैं बोलने के लिए. इंटरव्यूज में भी जो इस तरह के करंट अफेयर्स, जनरल अवेयरनेस वाले क्वेश्चन होते हैं उसमें भी हेल्प मिलती है. यस सर. डेफिनेटली ये एक पॉइंट है जो कि हम भी सबको रिकमेंड करते हैं, अपने सभी स्टूडेंट्स को रिकमेंड करते हैं इन जनरल भी. यस सर. न्यूज़पेपर रीडिंग करना चाहिए, करंट अफेयर्स के टच में रहना चाहिए एंड मोर ओवर एक पब्लिक स्पीकिंग की प्रैक्टिस करनी चाहिए. yes, इससे ओवरऑल पर्सनालिटी एनहांसमेंट तो होता ही होता है फॉर श्योर. यस सर. तो कॉन्फ्रेंस में भी ये कॉन्फिडेंस हेल्प करता है. यस सर. सो कॉन्फिडेंस सर यहाँ से बिल्डअप होता है. आई फील न्यूज़पेपर रीडिंग है, एज यू मेंशन सर. न्यूज़पेपर रीडिंग तो आई रिमेंबर जब एडमिशन मेरा नहीं भी हुआ था, डे 1 पे जब मैं फॉर्म फिल करने आया था, जब इंडिविजुअली बात हुई थी तभी आपने बोल दिया था कि न्यूज़पेपर इज समथिंग, एंड वो इट एक्चुअली बिकेम अ हैबिट ऑफ माइंड कि यार आज भी इनफैक्ट अगर मैं मॉर्निंग में न्यूज़पेपर ना पढूं तो वो डे स्टार्ट ही नहीं हो पाता, वो किक ऑफ हो ही नहीं पाता है. कुछ ना कुछ ऐसा लगता है कि यार समथिंग इज मिसिंग अगर न्यूज़पेपर ना पढ़ो तो. सो आई फेल्ट कि
प्रैक्टिस से ये सब हुआ है. सो यस सर. एंड वन मोर वेरी इंपॉर्टेंट टेस्ट, उसके बारे में बात कर ही लेते हैं, ग्रुप प्लान एक्सरसाइज. यस सर. तो इसमें आपकी क्या परफॉर्मेंस रही थी? बिकॉज अकेला जीटीओ में ये एक ऐसा टेस्ट होता है जिसमें रिटन पार्ट भी इन्वॉल्व Yes, रहता sir. है ना. तो इसमें आपकी क्या परफॉर्मेंस रही और कैसे इसको प्रिपेयर किया आपने? सर एज सच आई वुड से कि ऐसा प्रिपेयर नहीं किया था जीपी को कभी भी मैंने, बट यस आई रिमेम्बर कि आपने बोला था कि अगर जीटीओ को कॉन्फ्रेंस में किसी कैंडिडेट के लिए पोटेंशियली फाइट करनी है तो ही वुड फाइट ऑन योर जीपी बिकॉज इट इज द ओनली रिटन एविडेंस दैट जीटीओ हैज फॉर अ कैंडिडेट. सो आई ऑलवेज टुक माई जीपी वेरी इंपॉर्टेंटली. इनफैक्ट मैं जब एसएसबी में भी जाता था तो आई वुड से कि ऑनेस्टली जीडी वगैरह होता है उससे पहले हीटेड आर्ग्यूमेंट्स हो जाते हैं. सो आई ऑलवेज से कि जो आर्ग्यूमेंट्स वगैरह करने सब जीडी में कर लेना. वहां पे देर इज नो restriction कि you have to come to a common conclusion, but GP is something कि you have to come to a common conclusion, and GP जो होता है वो just after the GD होता है. So mostly लोग जो होते हैं कि यार वो GD वाले उस चीज़ों में ही अटके होते हैं कि मेरे को अपने points देने हैं. But I felt कि when I went to गांधीनगर, हमारा जो बैच था, there were candidates जो अपना शायद 9th attempt दे रहा था. There was a candidate जो अपना 9th attempt दे रहा था, and पोटेंशियली हम 9 कैंडिडेट्स से, और आज की डेट में 9 में से 8 बच्चे ऐसे हैं हम जो कहीं ना कहीं प्लस साइन ले चुके हैं, रिकमेंडेशन का टैग. तो हमने जो अपना जीडी प्लान किया था दैट वाज वेरी, आई वुड से कि बहुत ज़्यादा हम लोग एक दूसरे की हेल्प कर रहे थे. ऐसा कहीं नहीं लग रहा था कि यार अभी अभी हम जीडी दे के आए हैं जिसमें हम सब फाइट कर रहे थे अपने पॉइंट्स पुट अप करने के लिए, और अब हम एकदम से जीपी पे आ जाते हैं जहाँ सब एक दूसरे की बात मान रहे हैं. सब एवरीवन गॉट अ चांस टू स्पीक, एवरीवन वाज एबल टू पुट इन देयर पॉइंट्स. और अगर किसी के पॉइंट्स एक्सेप्ट नहीं भी हो रहे थे ना तो ही नेवर फेल्ट कि यार मेरे पॉइंट एक्सेप्ट ही हों. ही एक्सेप्टेड द फीडबैक वेरी ओपनली एंड वी मेड द जीपी. वी हैव टू चूज द बेस्ट थिंग. यस, वो हमारी हो या किसी और कैंडिडेट की हो. एग्जैक्टली. Okay, so in all the group tasks, this is one common thing. Yes, sir. We have to go with the best, and हमें ग्रुप को सपोर्ट करना है, Yes, कोऑपरेट करना है, अपने पॉइंट्स भी रखने हैं. Yes, sir. लेकिन अगर किसी और के पॉइंट्स अच्छे हैं तो उनको भी अप्रिशिएट करना है. Yes, sir. So you followed all these things. Yes, sir. Okay. So what is now you are waiting for your joining? Yes, sir. I'm waiting for my joining list. Okay, December end. Yes, sir. December end would be the. I mean, the joining is starting from 23rd December, so I'm hopeful I would also be called very soon. So on becoming a fighter pilot, Yes, sir. अभी से आपकी क्या एक एस्पिरेशंस है? अभी तो आप बने नहीं हैं, अभी तो ट्रेनिंग, बहुत लंबी ट्रेनिंग आपको फेस करनी है. Yes, sir. बट एज अ फाइटर पायलट आपके क्या एम्बिशंस हैं? क्या आप टेस्ट पायलट बनना चाहोगे Yes, sir. या क्या आपने कुछ सोच रखा होगा कि मैं फाइटर पायलट बनूंगा, Yes, sir. तो ये करूंगा वो करूंगा, है ना, मेरा Yes, sir. ये रोल रहेगा. तो क्या क्या आपके अपने पर्सनल एम्बिशंस क्या हैं? पर्सनल एम्बिशन सर, आई वुड से कि आई रिमेंबर मैं जब छोटा था, माई फादर वॉज पोस्टेड इन एयरफोर्स स्टेशन पठानकोट, एंड वहाँ पे MiG-21 की स्क्वाड्रन है. बट जो MiG-21 मैंने काफ़ी देखा है वहाँ से टेक ऑफ लैंडिंग करते हुए, बट एक दिन सडनली देयर वाज अ सुखोई जो वहाँ पे लैंड हुआ था, एंड इट वाज रियली अ वेरी अमेजिंग सीन फॉर मी. सो वो बैक ऑफ द माइंड कहीं ना कहीं वो साइकोलॉजी में आ गया है कि यार बनना है, सुखोई का फाइटर पायलट बनना है. Honestly, there is a very hard training which I will be undergoing, and no one knows where the fate is. But on a personal note, I want to become a Sukhoi fighter pilot. So that's for my personal ambition. And yes, sir. Okay, great. So, aspirants, this is the raw form of our conversation which we are presenting for you. Okay. So that आपके बहुत सारे मिथ्स दूर हो सके, बहुत सारे इंस्पिरेशन आपको मिल सके, और आप भी अपने एम को अचीव कर सकें. ठीक है. एंड फॉर मोर गाइडेंस एंड answers for your questions, you can always contact us. Okay. So we wish you all the best for the journey ahead. Thank you so much, sir. Okay. We'll see. अगर फिर कभी मौका मिलता है तो आपके अगले कुछ दिनों के और जो एक्सपीरियंसेस होंगे उनको भी हम शेयर करेंगे लोगों के साथ. ओके. एंड फेलियर से भी सीखना चाहिए, सक्सेस से भी सीखना चाहिए,
ओवरऑल सीखते रहना चाहिए, है ना? सीखते रहना चाहिए एंड कंसिस्टेंट रहना चाहिए, Consistent रहना व्हाट आई लर्न. Yeah, good, very good. Okay, so thank you, and we'll see you again. Okay, all the best. Thank you so Thanks. much.